Preeti Tiwari is registered with SEBI as Individual Research Analyst. Any matter displayed in this are purely for knowledge purpose and shall not be treated as an advice, opinion of any kind. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. I hope you all are doing well and you all had a great weekend. Welcome to Platinum Research, your own channel. And today we'll be talking about the basics of how the macros are shaping up and how the markets can react to this. So there have been multiple social media handles and platforms wherein people are talking about a big crash. So before you look at those news, make sure that you follow the right idea of getting into either of the side, either if you want to short the markets or you want to long the markets, because macros, as I said always, that you need to connect the dots and understand कि मार्केट कैसा आगे रिएक्ट करने वाला है. तो क्विकली चलते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे. सो लेट्स गो टू फर्स्ट थिंग दैट विल चेक द ग्लोबल इंडाइसेस. सो ग्लोबल इंडाइसेस में एज सच तो कुछ बहुत बड़ा मूव दिख नहीं रहा है इफ़ आई चेक आउट हियर. ऑल्सो इफ़ यू लुक हियर, यहाँ पे जो विक्स है वो अच्छा खासा 3% का डाउन साइड दिख रहा है विक्स में. नाउ लेट्स चेक क्विकली कमोडिटीज़. तो कमोडिटीज़ में क्रूड इज़ हैविंग ट्रबल. मतलब क्रूड में डिसेंट आपको यहाँ पे भी 1.3% का डाउन साइड मिला इन द लास्ट सेशन. ऑल्सो गोल्ड एंड सिल्वर करेक्टेड वेल. That's another bright side, how people are reacting to small crashes, which people call, I don't call 500-600 points ka dip a crash, but people do call it. So according to their language, a crash hai market mein. So I think you need to understand that the corrections are important. A base and accumulation is important if you want to check a steady and a healthy upside momentum. तो उसके लिए ये वाले जो downside momentum है वो important है. Now let's quickly go to bonds. Bonds में भी एक dip देखने को मिला है. So इधर के end से जो हम टेक्निकल एंड से देखते हैं या जो हमारे बेसिक फैक्टर्स है जो आप सभी चेक करते होंगे, वो एंड से तो एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड. नाउ लेट्स क्विकली गो टू वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विच आई हैव बीन रीडिंग ऑफ लेट इज़ दिस, दैट वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग लिस्ट अभी आई है, जहाँ पे इंडिया इज़ करेंटली रैंक्ड एज 4th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी एंड इट इज़ ओवरटेकिंग जापान टू सिक्योर द 4th पोजीशन अमंग्स द वर्ल्ड टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़. अभी देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से हमने ग्रो किया है फ्रॉम 2020 कोविड लेवल से, इट वाज नॉट इजी फॉर इंडिया टू get into this position. So now IMF forecasts, so this is the news, that the IMF forecasts that by 2028 India will overtake Germany to become the 3rd largest economy worldwide. So as I said कि हमारा जो डेटा है, अगर आप देखोगे करेंटली हम 4th नंबर पे हैं और ये हमारी जीडीपी रैंकिंग है. ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये हमारी जीडीपी रैंकिंग है टॉप 10 में. सो IMF सेज, एंड IMF is like upgrading some country is not a joke. So it's a good news. So अगर इंडिया 4th रैंक पे है और अभी आपको लगता है कि IMF को लगता है कि we can step up and we can go to 3rd position, that's amazing news. Now also look into this, that जब 2025 में हमने एक 4 ट्रिलियन इकोनॉमी डिक्लेयर हुई थी इंडिया की, और IMF का डेटा तब भी ये कह रहा था कि इंडिया ने जो 2025 में अपना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का क्राउन लिया है, दैट वाज वी एक्चुअली मेड श्योर दैट वी आर ओवरटेकिंग जापान हियर. सो हमारे जो लीडिंग जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे हैं इस जर्नी में वो रहा है एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और बिजनेस आउटसोर्सिंग. नाउ यहाँ पे एक ट्विस्ट है दैट अभी लेटेस्ट न्यूज़ एक आई है दैट TCS हैज़ लेड ऑफ 12,000 पीपल. आई थिंक दैट इज़ देयर. IT का जो मूव है मार्केट्स में एज ऑफ नाउ, दैट हैज़ बीन वेरी टेरेबल. और इफ़ यू फॉलो मी ऑन अदर channels or other social media handles as well, off late on Spaces on X, formerly known as Twitter, I have said that मुझे IT थोड़ा bearish लगता है. So sector wise you have to make sure that you're picking up right sectors at the right time. So now, as I said, that as per IMF projection, उनको लगता है from the 4th position we can step up to the 3rd position. That's a great news.
So out of multiple things coming in the market, out of multiple levels being breached in the market, technically market जो आपको वीक लग रहा है, ये सब चीज़ें देखना थोड़ा important है. Now another important news is this, that Trump presses Powell to cut rates during 10th visit to Fed. अभी ये होने वाला है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाए, और इसकी वजह से यू हैव बीन सीइंग द टैरिफ गेम्स कमिंग इन. So definitely he is acting a little weird, and the kind of whipsaws that we are seeing in market because of the tariff challenges is something is historically been talking about. So अभी आपको ये देखना है कि why he is trying to do this is because he wants to मेक श्योर कि उनका जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाए, एंड ऑल्सो ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट अभी फ़िलहाल वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको भी वो कट डाउन कर दे. सो यू नो हाउ इज़ द chemistry between Mr. Powell and Trump. So likely, you know, there was a news coming in जहाँ पे he was telling that he might fire Mr. Powell. So that is also coming in the news as. But I think ये होने की जगह as this news comes in that there could be a rate cut, that comes more positive. So दो positive news है और एक TCS का जो है आपको negative news है, उसमें IT पे थोड़ा असर पड़ सकता है. So definitely IT, as I said पहले भी, कि थोड़ा एक caution zone में है. तो I think you're well prepared for that. In case if you're following me on the social media handles, already Linktree का यहाँ पे bio में एक link दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे मेरे बाकी सारे media handles पे follow कर सकते हैं. That may help. So these are two important updates as per the other factors that you know you would like to know. अब quickly चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे. हम निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं. So this is बैंक निफ्टी चार्ट लाओ चेक किया. This is a 4-hour chart. सो दिस इज़ 50 EMA. हम 50 और 21 दोनों ही EMAs के नीचे क्लोज हुए हैं. सो आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेक हियर इज़, क्योंकि हम टेक्निकल लेवल्स चेक कर रहे हैं, हम प्योर प्राइस एक्शन देखेंगे. वी विल नॉट फोकस ऑन एनी अदर इंडिकेटर्स एज ऑफ नाउ. सो अगर हम देखते हैं टेक्निकली, हमारा जो ये जोन था, ये एक ऐसा जोन था जहाँ पे हमको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, विच वॉज अराउंड these areas 57 200 70 80 areas. And on the downside if you see, ये वाला जो level है, this important level is acting as a support level. So अभी जो हमारा range है वो तकरीबन कुछ 1000 पॉइंट का हो गया है, 56 200 से 57 200 का. कल अगर हमको कोई ये रेंज 56 200 के आसपास अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, क्योंकि आईटी में प्रेशर बन सकता है मॉर्निंग में, इन दैट केस वी हैव टू मेक श्योर दैट यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली शॉर्टिंग इट. अभी मैं आपको निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ निफ्टीज चार्ट. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दिस ऑन माई हैंडल on Telegram and the other handles as well. So यहाँ पे हमारे पास एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था ना. what actually happened here is कि रेंज ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट आया एंड देन रीटेस्ट भी हुआ, बट द रीटेस्ट के नीचे लेवल्स पे अभी हम फिलहाल क्लोज हो गए हैं. सो दैट इज़ अ ट्रबलसम थिंग. सो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू टेक केयर ऑफ हियर इज़ दैट जब हम ये इंपॉर्टेंट लेवल्स पे क्लोज होंगे, 24917 वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, हम जब इसके ऊपर क्लोज होंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन मार्केट्स कैन बी विजिबल. राइट नाउ अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, सो यू कैन चेक दैट हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है वो तकरीबन इसी लेवल्स पे है, और हम इन्हीं लेवल्स के आसपास अभी हम फिलहाल क्लोज हुए हैं. सो इफ़ आई लुक एट दिस करंट चार्ट, we are definitely weak, but we will see a strong momentum above 24,920 930 zones importantly. अब इसी चार्ट पे कई बार अगर आप if I just delete everything here and if you want to check a smaller time frame, let's say this is an hourly time frame. So अगर आप hourly time frame पे देखोगे तो यहाँ पे आपको clearly दिखाई देगा that after a gap down यहाँ पे और कोई बड़ा सेलिंग का फॉलो थ्रू नहीं आ पाया. सो देयर हैज़ बीन अ कांस्टेंट डोजी, विच मीन्स दैट देयर हैज़ बीन अ इनडिसिसिवनेस इन मार्केट्स, जो यहाँ पे लास्ट के 3 से 4 कैंडल आपको मिले हैं. सो दैट क्लियरली शोज़ कि जो बायर्स हैं या फिर जो यहाँ पे जो सेल करने के लिए लोग तैयार बैठे थे, दिस हैज़ बीन क्लियर अ ट्रैप काइंड ऑफ मूव दैट हैपेंड इन द लास्ट मिनट्स. और यहाँ पे जो बायर्स की क्वांटिटीज़ देख रही हैं, यहाँ पे बायर्स आपको विजिबल दिख रहे हैं. सो मेक श्योर कि आप RSI
के साथ चार्ट प्लॉट करके देखिए, दैट इज़ योर होमवर्क, इतना तो आप कर सकते हैं फॉर योर लर्निंग प्रोसेस। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दिस, कि आप एक बार चेक करिए कि RSI के साथ आपका चार्ट कैसा लग रहा है, दैट इज़ डेफिनेटली इन अ ओवरसोल्ड जोन। नाउ इफ़ आई लुक एट दीज लेवल्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। नाउ इफ़ आई लुक एट दीज लेवल्स, जो हमारा ये वाला जोन है, ये तकरीबन एक सपोर्ट एरियाज़ हैं। सो नो इफ़ यू चेक एट दीज, दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन, दिस इज़ अ सपोर्ट एरिया जहाँ से निफ्टी में एक बाउंस दिख सकता है, बट डेफिनेटली द डाउन साइड है वो भी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि डाउन साइड आ ही नहीं सकता, दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। सो उसकी कैपिंग कहाँ तक है, उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ड्रॉ अ स्पेसिफिक, आपका जो भी डिमांड जोन है वो आप देख लीजिए कि आपके पास डिमांड जोन कौन से लेवल्स तक है। सो सरप्राइजिंगली 24,750 790 का जो जोन है, दैट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट जोन और अ डिमांड जोन। तो थोड़ा ये ध्यान में रखिए, एंड देन प्रॉब्ली आप अपना ट्रेड प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो मूव में रहेंगे, फॉर दैट मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, यू सब्सक्राइबिंग टू द अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे मैं पोस्ट करते रहती हूँ, एंड यू कैन गेट द अपडेटेड एंड द लाइव आइडियाज़ फॉर द मार्केट्स फ्रॉम देयर। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टुमारो। बाय, गुड नाइट।